Ladies and Habibis, we are going to introduction to you rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can. He is Doctor. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. Sorry, there was some problem. He's Adam Sikher. Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. इंग्लिश चैनल पे डॉक्टर जे स्मिथ को एक बार फिर बुलाया था। इंग्लिश चैनल पे वो आए थे और वहां पे कुछ नए इंकशाफात किए हैं उन्होंने, और वो चाहता हूं मैं कि वो आप सबके साथ शेयर करूं। और मैंने उनको उसी वक्त कह दिया था कि जनाब अब ये वाली जो वीडियो है ये मैं अपने उर्दू चैनल पे चलाऊंगा ट्रांसलेशन करके। तो आइए पहले आज सिर्फ ये सुनते हैं, समझते हैं और यहां पर लोगों तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही मैं आज की वीडियो खत्म करूं, एक दो चार काम आप लोगों ने करने हैं कि इसकी स्क्रीनशॉटें लेके अपने पास रख लेनी है, ठीक है? इसकी स्क्रीनशॉटें लेके आपने रख लेनी है डिफरेंट जगहों की, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जे स्मिथ के साथ इंग्लिश चैनल के ऊपर गपशप हो रही है और मैं कोशिश करूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दूं और मेक श्योर कि आप इसके स्क्रीनशॉट्स लें। So let's now look, and I'm putting on a timeline there. Now this is, so we don't know what anybody said because we have nothing written down to prove what they said was what they said. But at least Qadi and Ali, at least the Yasser Qadi and Shahir Ali do believe that what we can trust is what is 200 years and 300 years after the fact. That we can trust. So कहते हैं कि यार हमें कुछ और तो पता हो या ना हो, हमें ये पता है कि ये लोग 200 साल 300 साल तक कहते हैं कि ये सारा कुछ हम तक आ गया था। मोहम्मद के मरने के 200-300 साल तक आ गया था, 632। That's what they're saying. They're willing to go that much. Why? Because it's written down. Because that we have in our hands. क्योंकि वो कहते हैं कि 200-300 साल के बाद सब कुछ हमारे पास रिटन डाउन था, हमारे हाथ में, लिहाजा 200 साल 300 साल के बाद हमारे पास सब कुछ था, वो ये लोग मानते हैं। Isn't it interesting? They don't have any problem with what's in our hands today. Notice that. वो कहते हैं कि आप ये सोचो कि उनके पास इस वक्त कोई टेंशन नहीं है कि हमारे पास आज क्या है। Okay? And they assume that what's in our hands today is exactly what Al-Bukhari wrote and Sahih Muslim wrote and Ibn Hisham and all the rest wrote. कि आज जो हमारे पास है ये लोग कहते हैं कि हाँ ये वही है राइटिंग जो बुखारी ने राइट किया, जो इब्न हिशाम ने राइट किया, जो मुस्लिम ने राइट किया। ये कहते हैं कि आज जो हमारे पास है ये वही है जो उन्होंने राइट किया। My question is what I asked at the very beginning of the hour, and I asked you about an hour ago, where are those 5 manuscripts that were written down as extant manuscripts for the Quran during the time of Uthman? Where is even one of them sent to the 5 cities? And you can answer that, could you? And that कहता है कि मेरा सवाल दोबारा वही है सबसे पहले कि वो जो 5 कुरान के मुसहफ लिखे गए थे उनमें से एक भी मुसहफ कहाँ है? जो 5 कुरान के मुसहफ लिखे गए थे उनमें से एक भी मुसहफ कहाँ है? मेरा सेम सवाल दोबारा यही है, तो वो कहाँ है मुसहफ? bothered you, didn't it? Yes. So I'm going to answer that same question I asked of the Quran. I'm going to ask of Muhammad. Where are these extant manuscripts of these guys that they do trust? कहता है कि मैं सेम क्वेश्चन जो कुरान के लिए कर रहा हूं वही मैं अब इन सही हदीसों और सीरत के लिए करता हूं कि वो जो सही हदीसें और सीरत के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो कहां हैं, वो दिखाओ। सही बुखारी का मैन्युस्क्रिप्ट, सही मुस्लिम का मैन्युस्क्रिप्ट, तिरमिज़ी का मैन्युस्क्रिप्ट, अबी दाऊद का मैन्युस्क्रिप्ट, सीरत नबी इब्न इस्हाक का मैन्युस्क्रिप्ट, ये सारे के सारे कहां हैं? The Ibn Hisham, Al-Waqidi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibn Dawud, Tirmidhi, Ibn Dawud, I'm sorry, I said Ibn Dawud, Al-Majah, Al-Nisai, and Al-Tabari. Same thing जो मैंने अभी बता दी already. And the Muwatta Malik, so don't forget him, okay?
So when I asked this of Muslims, and I did a debate, I didn't debate, I've been going back and forth with a guy named Sheikh Farid. We went on this, and he started coming up and he says, Jay, you don't know what you're talking about. And he was in his office and he started pulling books off the shelf. Look at this one here. Look at this one here. Look at this one here. And he started naming all these names. And he named 6 names of those that predated Al-Bukhari. He says these are all 7th and 8th century. These are Sahaba. These are Tabi'un. These are ones that we have. I have them on my bookshelf. Take a look at them. So let me just put those names off. So these are the names of the ones he said. Notice what's right at the first. Muwatta Malik. There it is, right? The Yes. Sahifa Hanman bin Munabi. The Musnad of Ibn Hanbal. The Musnaf of Abdul Razak, the Musnaf of Al-Tayalisi, and the So basically वो सारी किताबें दिखाता है, कहता है कि जब मैं एक बंदे के पास गया तो मैंने उसे बताया कि यार तुम्हारे पास अर्ली स्कॉलर्स तो है ही कोई नहीं, तो उसने किताबें निकाल के मुझे दिखानी शुरू कर दी। उसने कहा ये देखें मुस्नद इमाम मालिक की देखें, मुवत्ता इमाम मालिक यानी कि, और ये इमाम हम्बल की किताब देखें, ये देखें मुस्नद इब्ने हम्बल देखें, ये देखें मुस्नद अब्दुल रज़ाक देखें, ये देखें जी मुस्नद समथिंग मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है इस वक्त, अभी शैबा देखें। तो कहता है कि यार देखो मेरे पास है किताबें, ये मोहम्मद के स्वाबियों की किताबें हैं। Musnad of Abi Shaiba. You've heard these names, right? Yeah. These are all 7th and 8th century. So these are Sahaba, and he would say these are like Tabi'un, the Sahaba. These are the 1st and 2nd generation. Absolutely. Do you believe that? That's the claim. That's the claim. Okay. वो कहता है क्या तुम इसमें यकीन And रखते हो? most मैंने कहा people, हाँ when you यही say claim that, है। there's no way you cannot do. There's nothing you can do. You say, okay, you must know what you're talking about. And most people in the West, we just assume they know what they're talking about. I assume कहता है जब वेस्टर्न लोगों के पास वही चीजें रखते हैं तो हम कहते हैं हाँ यार ठीक है, तुम कह रहे हो तो obviously होगा। that he was correct. I said, wow, I had no idea that they had all these, and these are all predate Al-Bukhari, right? They all predate Ibn his. ये 6 किताबें बुखारी से पहले हैं, तो लिहाजा बुखारी इन किताबों को यूज करके लिख रहा है। Sham for the Sira, and Al-Waqidi for the Sira, and also Al-Tabari for the Tafsir and Tahrir. All of these traditions, this is predated by these 6 guys here. You want to know when their dates are? तुम We जानना went back चाहते हो to find out इनकी डेट when कब है? these guys died. I'm giving you their death dates. We always give you the death dates. The reason we give you the death dates, because that is as far as they could keep writing and changing and manipulating. And then what they finally, when they died, that's what then is attributed to them. और कहता है इनकी डेथ, इन लोगों की डेथ डेट पता है तुम्हें? और कहता है डेथ डेट इसलिए दे रहे हैं कि डेथ डेट वो आखिरी डेट है जहां तक वो लिख सकता था, उसके बाद वो लिख नहीं सकता था। Okay? So you always Sounds go like to the a plan. last date. They probably wrote this maybe 20 years, 30 years before they died. If they're उन्होंने anything शायद like me, you start 20 getting साल पहले senile. लिखी I'm हो, starting to get लेकिन हम senile डेथ now डेट in को my यूज करते 70s. हैं। So I'm not going to be writing as much in the next 30 years, but I'm going to still be talking. I'm कहता है still be मैं debating, बोल but my सकता हूँ best लेकिन अब मैं years लिख are नहीं ahead सकता of me. क्योंकि बुढ़ा हो गया No हूँ, तो longer मेरे behind me. मेरे पास Okay? लिखने So का let's टाइम just अब say, कम है। let's put their death dates because I still could change it. They could still change it up until they died. Look at that. Muwatta ibn Malik, the earliest. What's his date? Take a look. Whoa, that's 9th century. What's the next one? Whoa, wait a minute. We have nothing written by him in the 9th century. Everything we have written by him is from the 11th century. Everything we have मुवत्ता मालिक हो या ये सारे के सारे हो, ये 11वीं सेंचुरी से पहले कोई नहीं लिख रहा। written by Sahaba, the Sahifa Hanbal bin Munabi is from the 12th शहीदा century. हम्बल बिन मुनब्बे, You say, you're so much better than me. Do the next 4. मुस्नद इब्ने हम्बल, मुनाफ अब्दुल रज़ाक, and Musnad al-Tibyasi and Abu al-Shuayba. So Tayalisi. all of them are 13th century and 12th, and the earliest is 11th. Nothing before the 11th century. So 11वीं सेंचुरी से पहले कुछ है ही नहीं। कहानी थे कहानी, कहानी थे कहानी। So you are telling me कि जितनी भी कहानियां बनाई हैं वो 11वीं सेंचुरी से पहले कुछ है ही नहीं आपके पास। मोहम्मद इज अ मिथिकल कैरेक्टर, यानी कि इतनी बड़ी 2 नंबरी की गई हुई है मुसलमानों के साथ इनके स्कॉलर्स के द्वारा कि यार कुछ एक चीज नहीं है तुम्हारी मोहम्मद के पास की। केरा मोहम्मद। We have no extant manuscripts for any of these 6. The first manuscript that's in our hands is not until the 11th century. So what should we do with these guys? You want to see what I'm going to do with them? Watch.
Goodbye. When they go off the screen. उसने कहा मैंने सबको बाहर फेंक दिया. There's nothing there. We have nothing from the 7th and 8th century. They all begin to appear. Now, they are attributed to them. That is true. Not one of them wrote anything down. And how is it that they were suddenly able to write in the 11th century, yet they lived in the 7th and 8th century? वो कहते हैं कि यार अगर वो 7 से 8 सेंचुरी में रह रहे हैं तो ये जो राइटिंग है हमें 11वीं सेंचुरी में क्यों मिल रही? 11वीं सेंचुरी में कौन राइट कर रहा? हाँ वो कह रहे हैं कि एट्रीब्यूटेड है टू दिस गाय, लेकिन लिख कौन रहा है? So I want to say something over here, which is going to go a little beyond your research. So when I was in an earlier age of mine and I was a Muslim and I first started to question Islam, and one of the major questions that I was doing it from the tafsir of Ibn Abbas. And I'm telling you that I was talking to a scholar of Islam, rather two of them at different locations. And when I was giving him the tafsir of Ibn Abbas, and then he was stuck at a certain locations, he verbatimly told me that we do not accept the tafsir of Ibn Abbas as the true authority because this tafsir is not written by Ibn Abbas, it is attributed to Ibn Abbas. And because it is attributed to Ibn Abbas, so it means that there could be changes in them at a later time, so we will not hold it to be truly accurate. So you are telling me that all of these sources that they are right now giving it to you as a Christian, hey, you are a Christian, you are doing research on Islam, you are not a Muslim, dude, listen, these guys are the earliest guys, yet what you are telling me is that all of these books are attributed to them just like the Tafsir Ibn Abbas, and it is never that they have the original game. So the Muslims who are rejecting Ibn Abbas for the tafsir are actually doing the same thing right now, and they have been doing that because these books were never prominent. Why were they never prominent in Islam? Because they were attributed to these people, and actual Islamic scholars were not taking them as authority books. They started to give these books to you or the people who are doing historical study just because you are showing that you don't have anybody of that time writing, and now they are referring to these books even though till 2025 or 2022 or whatever, they weren't even taking them as authority. There you go. Okay, so यहाँ पे मैंने आपसे बताया अपना एक्सपीरियंस कि जब मैं मुसलमान था तो मैं एक दफा इब्ने अब्बास की तफसीर के ऊपर बात कर रहा था और एक बंदे से बात की, फिर मैंने दूसरे से बात की और दोनों ही इमाम वगैरह लेवल के बंदे थे। तो उन्होंने कहा भाई यार ये इब्ने अब्बास की तफसीर है वो, और आज भी जब हम डिबेट भी करते हैं और डिबेट में भी जब हम इब्ने अब्बास का रेफरेंस लेके आते हैं तो मुसलमान क्या कहते हैं, यार इब्ने अब्बास की तफसीर जो है वो ओरिजिनल नहीं है, वो एट्रीब्यूटेड टू इब्ने अब्बास है, बाद में लिखी गई है और उसे कहा गया इब्ने अब्बास ने ऐसा कहा था। तो भाई साहब ये जो जितनी भी ये किताबें इसने बताई थी ये आपकी सियासत की किताबें नहीं है, ऑब्वियसली ये वो किताबें नहीं है जिसको मुसलमान सियासत में रखें, यानी कि सही 6 बुक्स में रखें। लेकिन इन किताबों को आज ये लोग निकाल निकाल के क्यों ला रहे हैं कि किसी तरीके से कह सकें कि यार हमारे पास मोहम्मद के जमाने की किताबें मौजूद हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसको कब लिखा गया तो पता लगता है वो 11वीं सदी के बाद लिखा गया। तो यानी कि ये भी किताबें इसी वजह से इस्लाम में इतनी प्रीडोमिनेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि प्रीडोमिनेंट होने के लिए इन किताबों का वजूद होना जरूरी था, तो लिहाजा इन किताबों का चूंकि वजूद नहीं था तो लिहाजा इन किताबों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं रखा गया था एट दैट टाइम। Everything that your scholar told you about Ibn Abbas, you can now say about Ibn Malik, you can say about Munabi, you can say about Hanbal and Razak and Tailisi and Shaiba. You can pretty well throw them all 6 out. And they have been throwing them out already by themselves because they were never producing material from these books to prove Islam by any mean. That in my studies with them, none of them actually gave me all of these things. Yeah, some of them actually gave me Muwatta, but they said you have to study Muwatta with some pinch of salt because there is a lot of, issues in it. And even so Malik actually threw a lot of, sorry. So we're going to the weakest first, all right? Now let's go. Which ones do they give you? Which ones are you supposed to? So ये बातें मैंने कहा यार ये जो है ना ये वीकेस्ट सोर्सेज है। यानी कि क्यों वीकेस्ट सोर्सेज है? क्योंकि इनका ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं है। चूंकि इनका ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो ये वीक सोर्सेज हैं।
जिसकी वजह से हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कभी भी इन सोर्सेज को नहीं प्रेजेंट करते थे, क्योंकि जिस तरह इब्ने अब्बास को रिजेक्ट करते थे, इसी तरह वो इनको भी रिजेक्ट करते थे, नहीं बताते थे। हाँ, अगर आप बात करते हो मुवत्ता मालिक की, तो मुवत्ता मालिक के मुतालिक जरूर बताते होते थे, लेकिन मुवत्ता मालिक बताते हुए भी वो कहते थे कि यार इसको थोड़े से नमक के साथ लेना। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने जे स्मिथ को बताने की कोशिश की, यार ये वीक सोर्सेज हैं, टू द सियासता, असल सियासता पे आओ। तो अब सियासता के ऊपर जे स्मिथ क्या बोलते हैं, लेट्स लिसन। Go to which ones are the ones that Qadi and Shabir Ali always refer to? The best two are the Sahihains, means the two books, two Sahih books, which is Okay, Bukhari and Muslim. Okay, that's the Hadith. There you go. I'm putting them all up there on the screen. See them up there? So मैंने कहा कि जब आप बाकी लोगों से बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 Sahihain है, बुखारी मुस्लिम, और उसके बाद जो बाकी की हैं आपके पास, बाकी की 4। तो अब जब मैंने ये कहा तो उसने वो सारी की सारी उठा के सामने स्क्रीन पे रख दी है। लेट्स सी। Al-Bukhari 870, Sahih Muslim 875, Ibn Majah 887, Tirmidhi 884, Dawud 899, and Nasai 915. So 9th and 10th century. Late 9th, Yeah. early 10th century, right? They are pretty clear. तो वो कहता है कि ये सारी की सारी किताबें, बुखारी, मुस्लिम, ये इब्ने माजा, ये सारी की सारी कब है? 8th और 9th सेंचुरी के अंदर है। ओके, क्लोज टू ईच अदर। Those are the ones that they say you can trust, right? यस। Sahih और Bukhari, ये वो Sahih है Muslim. जिनके That ऊपर means ट्रस्ट with किया जा सकता है, जिसपे लोग कहते हैं कि सही किताबें हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट करना है, और इसके अंदर सही हदीसें हैं और इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। इस्लाम इन 6 किताबों के ऊपर टिका हुआ है। without error. Absolutely. Okay. And you trust them, right? Because they're 9th and 10th century. After Quran, the 2 Sahihains, means Sahihain is the Arabic word for 2 Sahih books, are the most authentic, and then the rest. So Quran के बाद सही मुस्लिम, सही बुखारी are the 2 Sahihains, means Sahihain का मतलब ये होता है 2 सही किताबें, ठीक है। तो और उसके बाद ये बाकी की 4 जिसके अंदर सही है। मैं कहा ये वो चीज है। तो अब आप इन चीजों के बारे में बताओ, ये तो हमारे पास है, मुसलमान कहते हैं कि ये है, और ये 8वीं और 9वीं सदी में लिखी गई है। Okay, show me the manuscripts for Bukhari, Tirmidhi, Majah, Dawud, and An-Nasai. Show me one. Show me one manuscript for the 9th century. One. कहता है कि मुझे 9वीं सेंचुरी में से इनमें से किसी का मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दो। और मैं अब अमेज हो गया। मैं कहा है इनमें से किसी का? One. Just one. कहता है सिर्फ एक का दिखा दो, 6 में से एक का दिखा दो। Show me a partial manuscript from the 9th century. कहता है इसमें से पार्शियल मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दो 9वीं सेंचुरी का, यानी कि 50%, यानी कि 25%। एक पन्ना जो होता है उसे पार्शियल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं कहते, ठीक है। I'll go with partial. Okay, so what you're telling me is none of them has a manuscript, not even a partial manuscript, not even a parchment. We haven't found it. Not even a paper, like one single paper. There could be. I could. मैंने कहा उसे यार ये क्या मतलब, तुम कह रहे हो कि एक भी नहीं, पैराचमेंट भी नहीं, एक सिंगल पेपर भी नहीं, यानी कि एक सिंगल पेपर भी नहीं। एक सिंगल पेपर। और उसका जवाब क्या है? अभी तक तो नहीं मिला। जवाब क्या है? अभी तक तो नहीं मिला। Let me be careful here. Yes, there could be a parchment. Yes, there could be a scrap. Yes, they could be. But can you? I'm not talking about that. I'm talking about what we have in our hand today. Where is all 9 volumes of Sahih Bukhari? 9 volumes. Okay. Wow. In fact, where is the earliest of the 9 volumes that we find? You ready? You Yes. look at the earliest for No Ibn kidding. Dawud is 11th century. That's the earliest we can find for Ibn Dawud, right? The earliest that we can find for An-Nasai comes in the 12th century. The earliest. Okay, मुझसे पॉज नहीं हो रहा था, दोबारा से पॉज करते हैं। मैंने उससे बाद में पूछा, मैंने कहा यार इसका पैराचमेंट भी नहीं है। पैराचमेंट मींस एक सिंगल पन्ना। तो कहते कि देखो पैराचमेंट जो है ना, उससे साबित नहीं होता कुछ कि किसका है, किसने लिखा है, किस तरह लिखा है। हो सकता है कहीं ना कहीं एक आधा पैराचमेंट हो। अब जिस तरह बर्मिंगम मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना, वो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं कहलाता, वो पैराचमेंट कहलाता है। क्योंकि किसी चीज के मैन्युस्क्रिप्ट के होने के लिए
आपके पास उसके इर्द गिर्द कम से कम 4-5-6 पन्ने होने चाहिए, क्योंकि जब तक 4-5-6 पन्ने नहीं होंगे आपको कॉन्टेक्चुअली पता नहीं लगेगा वो क्या है। इसीलिए बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट को मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं कहा जाता। मैन्यूस्क्रिप्ट मींस कि उसमें 5-6-7 पन्ने बेरे मिनिमम होते हैं। कहता होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई निकाल लेगा, फिर उसको इसको रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च करके पता लगेगा यार ये उसी का है या किसका है, क्योंकि पन्ना निकालना इनके लिए तो आपको पता है ना। अभी आप कुछ कहोगे, एक नई रिसर्च दोगे, सबसे पहले क्या आएगी? रिजेक्शन। उस रिजेक्शन में क्या आएगी? एक आधा पन्ना कहीं ना कहीं से, फिर उस पन्ने को बाय द टाइम यू विल डू कार्बन डेटिंग एंड एवरीथिंग, और उस चीज को कॉमन निकालेंगे कि यार ये झूठ है, जो कि आप देखते हैं हिस्ट्री में पिछले 10 साल में इन्होंने ऐसे ही तो किया। तो बाय द टाइम आप निकालोगे उस वक्त तक जो है ना गालियां पड़ेंगी जे स्मिथ को और ये रिसर्चर्स को। तो बात यह है कि उसने कहा यार मैं जरा सेफ्टी से खेलता हूं। इन रियलिटी वो इस वक्त सेफ्टी से खेल रहा है, क्योंकि इस वक्त तो नहीं है, कल को कुछ निकला है तो वो एक सेपरेट चीज है। तो बेसिकली इस वक्त 9 वॉल्यूम को छोड़े आपके पास बुखारी की 6 वॉल्यूम नहीं है, 6 वॉल्यूम को छोड़े 4 वॉल्यूम नहीं है, 4 वॉल्यूम को छोड़े 1 वॉल्यूम नहीं है, ना बुखारी की, ना मुस्लिम की, ना अबी दाऊद की, ना इब्ने माजा की, ना तिरमिजी की। आपके पास सियासत्ता में से किसी भी बुक की एक सिंगल वॉल्यूम नहीं है उस टाइम में, जिस टाइम में वो लिखी गई है। तो किस टाइम में है? Be a parchment. Yes, there could be a scrap. Yes, they could be. But can you put? I'm not talking about that. I'm talking about what we have in our hand today. Where is all 9 volumes of Sahih Bukhari? 9 volumes. Okay, wow. In fact, where is the earliest of the 9 volumes that we find? You ready? तो कहते हैं 9 वॉल्यूम को तो छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि वेयर इज द अर्लीस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सही बुखारी। सी, कोई एक वॉल्यूम भी किस जगह पे है वो बताओ। The earliest for No Ibn kidding. is 11th century. तो सबसे अर्लीस्ट जो आपके पास है वो अभी दाऊद की है, जो 11वीं सदी ईस्वी में, 11वीं सदी ईस्वी में अर्लीस्ट। सही बुखारी की नहीं है, अबू दाऊद की है। अबू दाऊद इज रिटन हिस्टोरिकली बिफोर बुखारी। That's the earliest we can find for Ibn Dawud, right? The earliest that we can find for An-Nasai comes in the 12th century. निसाई 12वीं सदी में। The earliest extant manuscript is from the 12th century. The earliest we can find for Ibn Majah is the 13th century. इब्ने माजा 13वीं सदी में। The earliest that we can find for Tirmidhi is also not the 13th, sorry, the 14th century. तिरमिजी 14वीं सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में। And here we go. The earliest we can find for Muslim is not to the 14th century, and the motherlode, the biggest, the most important, the one that everybody goes to, Sahih Bukhari, does not appear to the 14th and 15th century. यार बुखारी और मुस्लिम 14th 15th सेंचुरी से पहले है ही नहीं। अच्छा, मैं जिस वक्त बुखारी की इंटरप्रिटेशन रीड करता हूं वो किसने लिखी हुई है, कब लिखी हुई है? 15वीं सेंचुरी में। ओके, बुखारी की इंटरप्रिटेशन जो है इब्ने हजर अस्कलानी ने 15वीं सेंचुरी में लिखी। परफेक्ट। तो भाई बुखारी लिखी गई 7वीं सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में, उसकी इंटरप्रिटेशन लिखी गई 15वीं सेंचुरी में। क्यों भाई, क्यों? तकरीबन 900 साल के बाद क्यों लिखी गई, 800 साल के बाद क्यों लिखी गई? इसलिए कि बुखारी सली थी नहीं। बुखारी मिलती है आपको 15वीं सेंचुरी में है, इसीलिए इब्ने हजर अस्कलानी ने उसकी इंटरप्रिटेशन भी 15वीं सेंचुरी में लिखी है। आपने उसको एट्रीब्यूट कर दिया कि ये वाले पन्ने बुखारी ने लिखे है ही नहीं। अरे इब्ने माजा जो है वो बुखारी से ज्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन बुखारी ऑथेंटिक क्यों हो गई? इब्ने हजर अस्कलानी की वजह से। अब हजर अस्कलानी अपने जमाने का ऑटोमन एम्पायर का बहुत बड़ा स्कॉलर था। उसने चूंकि बुखारी के ऊपर एक्सट्रैक्ट लिख दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी, उसने बुखारी को प्रोमिनेंट कर दिया। अदरवाइज बुखारी 15वीं सेंचुरी से पहले नजर ही नहीं आ रही। 14वीं से 15वीं सेंचुरी, क्या मतलब है इसका? बुखारी जो है वो सिर्फ 500 साल पुरानी है। भाई आपका दीन इस्लाम 500 साल पुराना है।
500 साल। अगर बुखारी मुस्लिम सहीहैन है तो आपकी ये दोनों किताबें 500 550 साल पुरानी है। मोहम्मद अभी दाऊद से पूरा मोहम्मद क्रिएट करोगे? 11वीं सदी की अबू दाऊद से मोहम्मद पूरा क्रिएट करके दिखाओ मुझे, नहीं कर सकते। दिस इज द रियलिटी। ये रियलिटी है तुम्हारी। दैट्स अ जोक। You've ये not तो seen this मजाक है। before? नो, This is दैट्स the अ first time जोक। that you've seen this, right? Yes, I don't know. Like, I had no idea about this. Now, we do have a volume that does appear of Sahih Bukhari in the 11th century. That we can say. But the 9 volumes that we use today were only finalized and canonized, and actually the earliest manuscript we can get for all 9 volumes is not to the 15th century. वो कहता है बुखारी का एक वॉल्यूम है जो 11वीं सदी में मिलेगा आपको, एक है, तो उसको 11वीं सदी तक खींच के लेके जा सकते हो किसी तरीके से, लेकिन वो सिंगल वॉल्यूम है। लेकिन जो 9 वॉल्यूम, सिंगल वॉल्यूम मींस कि इतनी की है कि एक वॉल्यूम ही बन सकता है उसका, लेकिन जो एक्चुअल बुखारी है पूरी की पूरी जिसको आप रीड करते हो आज के जमाने में, वो आपको 14वीं 15वीं सेंचुरी से पहले नहीं मिलती। अगर सिंगल पन्ने के ऊपर कहना जी पूरी बुक इसी की है, कह लो 11वीं तक खींच के लेके जा सकते हो, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो इब्ने हाजर 11वीं सदी वाली किताब को पकड़ के अपनी एक्सप्लेनेशन लिख ही नहीं सकता था। कैसे लिख लेता जब वो थी ही नहीं? अगर 11वीं सदी में सिर्फ एक ही आपके पास वॉल्यूम बचा है एक तरह का, तो इब्ने हाजर 15वीं सदी में कैसे लिख सकता था उसके ऊपर? सो उसने जो एक्सप्लेनेशन लिखी है वो 15वीं सदी वाली 9 वॉल्यूम के ऊपर ही लिखी है और किसी पे नहीं लिखी। पता नहीं, हो सकता है इब्ने हाजर ने खुद क्रिएट कर ली हो। बाकी कैसे आपको पता है कि इब्ने हाजर अस्कलानी ने खुद नहीं क्रिएट की? So 9th century had only one volume kind of a thing. Nothing in the 9th century. I didn't say 9th century. I said 11th century. 11th century had some, मैं जरा उसको 9 समझ गया था, वो 11th है, सॉरी, क्योंकि 9th में मुस्लिम हम मानते हैं, तो some part of Sahih Bukhari. Is that what you're saying? We're going to get to that. Hold on. So, can you see for the Hadith? This is the Hadith, right? We Yes. don't have anything of Sahih Bukhari. We don't have any of the 9 volumes. We have, and I'm not going to say yet because no one has done the research just to find if there's any parchments or fragments. Some may appear yet. I'll tell you why I think that is important, okay? Because I think there was a Sahih. I think there was someone named Al-Bukhari. I would swear that there was probably someone named Muslim, and I think these guys did exist. Majah and Dawud and Tirmidhi and Nasai. I almost have to believe that they would exist. Otherwise, why are they so important? But what वो कहते हैं कि यार देखो, अगर मुझे ये कहो कि यार सही बुखारी नाम का बंदा मौजूद नहीं था तो ये गलत है, लाजमन होगा, वरना इतनी बड़ी एट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। अबू दाऊद नाम का बंदा नहीं होगा, ये नहीं मैं मान सकता। होगा। निसाई नाम का बंदा नहीं होगा, कहता है बिल्कुल होगा। मैं ये नहीं मान सकता कि बंदे नहीं थे, क्योंकि जितना कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है, ऐसे बंदों का होना बहुत जरूरी है, ना हो तो पॉसिबल नहीं है कि ना हो। लेकिन क्या है? लेकिन वाले पार्ट को सुने। we have today is not from them. That's what कि जो हमारे पास आज है वो उनका लिखा हुआ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नहीं हम कह रहे कि बुखारी एग्जिस्ट नहीं करता था, ये नहीं कह रहे इब्ने माजा एग्जिस्ट नहीं करता था, ये नहीं कह रहे कि तिरमिदी एग्जिस्ट नहीं करता था, इमाम मुस्लिम एग्जिस्ट नहीं करता था, इमाम अबू दाऊद एग्जिस्ट नहीं करता था, इमाम नसाई एग्जिस्ट नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि जो किताबें आज उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो किताबें वो नहीं हो सकती जो उन्होंने लिखी थी, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है ही नहीं। कैसे मान लें कि किताबें उन्होंने लिखी? लिहाजा बंदे होंगे, उन्होंने जो कहा है मोहम्मद के बारे में वो कुछ और है, जो हमारे पास है वो कुछ और है। I'm saying. I can't prove that they exist, but neither can Muslims. वो कह रहे कि यार मैं प्रूव नहीं कर सकता कि ये एग्जिस्ट करते थे, लेकिन मुस्लिम भी प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि उनके बारे में इतना कुछ लिखा जा रहा है, लिहाजा मैं उन बंदों को मान लेता हूं। लेकिन उनकी कुतब वो कोई मुस्लिम भी प्रूव नहीं कर सकता कि वो वही है जो उन्होंने कही थी।
because there's nothing from that time period that was written by them. That's the problem. So I'm just क्योंकि उनके टाइम पीरियड में जैसे वो लोग जिंदा थे उन टाइम पीरियड में उनके हाथ की लिखी हुई एक भी पन्ना मौजूद नहीं है. just going to assume that they did exist in the 9th and 10th century, but that's not what we're reading today. So what should we do to these guys in the 9th century? तो कहता है फिर ये 9-10 सेंचुरी में जो ये किताबें लिखी हुई इनके बारे में क्या करें जो कि हमारे पास एक भी पन्ना नहीं है. कहता है बाय Right, बाय. let's just get rid of them. Now we're getting to the big guy. कहता What है he अब did. हम बड़े This बिग is गन the की तरफ setup. चलते हैं और वो बिग गन कौन है जिसके ऊपर इस्लाम पूरा का पूरा टिका हुआ है इन रियलिटी और वो है सीरतुन नबी बाय इब्ने इसाक. उसके बारे में सुने. Right? And we've been told that the two major siras are written by Ibn Hisham and al-Waqidi. So that would be 833 and 835. 835 में सीरत नबी इब्ने इसाक लिखा गया जो कि इब्ने हिशाम ने लिखा इब्ने इसाक का और अल-वाकिदी की सीरत. Right? Okay, yeah. Well into the 9th century. And these have always been the earliest that the Muslims can go to. There's the two. Now they would say Ibn Ishaq, but we don't have anything from Ibn Ishaq. We have nothing. And even Ibn Hisham mentions that he doesn't have anything from Ibn Ishaq. But so इब्ने हिशाम ने भी कहा था इब्ने इसाक का उसके बाद कुछ नहीं है और इब्ने इसाक लिख रहा है और ये यानी कि 9th सेंचुरी में लिख रहे हैं 835 के करीब करीब. तो कहते हैं लेट्स सी दीस टू सीरत्स. this is the ones that they would go to find out what Muhammad did. और वो हमेशा इस पे जाएंगे मोहम्मद ने क्या किया था देखने के लिए सीरत भी देखनी पड़ेगी. Are you ready? Yes. So where are the manuscripts for Ibn Hisham and al-Waqidi? Give me a manuscript from the 9th century. कहता मुझे 9वीं सेंचुरी का कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट दे दो. मेरे पास नहीं है. I know they don't have it. The earliest manuscript we have for the Sira is this one that's in Fez. Oh my. सीरत का पहला मैन्युस्क्रिप्ट फेज के अंदर है जो कि 10वीं नहीं 11वीं सदी ईस्वी का है. 11th सेंचुरी का 11th सेंचुरी का वो भी कंप्लीट नहीं है. दूसरा वाला कहां है कंप्लीट बनाने के लिए? In Morocco. Take a look at the date. 1063. That's the 11th century. That's not the only manuscript we have. We also have this one, which is in the British Library, which is from 1278. दूसरा क्या है 1278 का जो कि 13th सेंचुरी बनता है. सो 11th सेंचुरी के कुछ पन्नों को पकड़ा 13वीं सेंचुरी के कुछ पन्नों को पकड़ा और उन दोनों को मिला के सीरत नबी इब्ने इसाक बनाई. किसने बनाई ये सुनिए. Then we have another manuscript, which is in the Bodleian Library in Oxford, which is from 1324. So now we're well into the 14th. और एक 14th सेंचुरी का भी मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि बड़ा है जो कि इन दोनों का मिक्स मिलाप है. एनीहाउ ये तीन मैन्युस्क्रिप्ट आ गए 11वीं 13वीं और 14वीं सेंचुरी. अब सीरत नबी इब्ने इसाक बनानी कैसे बनाएंगे? 14th century. And then we have this one here, which is in the Chester Beatty Library in Dublin, Ireland, from 1331. That's a 14th century. एक और 14वीं सेंचुरी का. And then we have a fifth one that is in the BNF in Paris, that is from the 1400s or 15th century. And the most important one is this one, which is in the SOAS Library, known as, well, 1589. So you're talking about 16th century. So we have those 6 manuscripts. ये जो 1589 वाला है ये सबसे ज्यादा मुकम्मल है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट आ गए. अब इन सब मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर सीरत नबी इब्ने इसाक बनी हुई है. अब वो कैसे बनी है? How in the world from those 6 manuscripts did we get the Sira that we have today? कहता है इन 6 मैन्युस्क्रिप्ट से हमने सीरत नबी इब्ने इसाक कैसे बनाया. आइए देखते हैं. How? Well, you know, you do have the Sira in your library, do you not? Yeah, I have it in my computer as well. Okay, and who's the one मेरे पास मेरे कंप्यूटर में भी पड़ा. whose name is there, who actually did the translation of it? गुलीलियम Ishaq. Alfred Guillaume is usually the one that everybody uses. Oh, I right? mean English translation. Okay, yeah. Sorry, the English translation that you use today is Alfred Yeah. Guillaume. Have you ever Yes. read the introduction to Alfred Guillaume? What does he say? उसने कहा कभी तुमने जो सीरत नबी तुम्हारे पास है इंग्लिश के अंदर उसका तुमने देखा किसने ट्रांसलेशन की. मैंने कहा गियोम ने. मैंने नहीं कहा, मैं तो कह रहा था कि इब्ने इसाक ने, उसने ट्रांसलेशन का लफ्ज नहीं सुन किया था.
फिर उसने बताया कि अल्फ्रेड गियोम ने इसकी ट्रांसलेशन की है, लेकिन तुमने ये पढ़ा है इक्तबास के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये किताब किसने लिखी है? No, I मैंने have कहा मैंने not नहीं पढ़ा। read that part. I skipped that part always. Okay, if you were to go back and read it again, you will see that actually Alfred Guillaume is just translating who the author of the Sira, and he doesn't say that Ibn Hisham wrote this or al-Waqidi. He actually says that this comes from Ibn Ishaq, not Ibn Ishaq, yeah, Ibn Ishaq from the 765, 8th century. That's what he claims. There's no man. वो कहता है कि जब गियाम ने ट्रांसलेशन की तो उसने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इब्ने हिशाम ने इससे को लिया इब्ने इसहाक से और उसने किया, बल्कि वो सिंपल लिखता है कि इब्ने इसहाक की है, वो बताता ही नहीं है कुछ और, वो सीधा इब्ने इसहाक पे जाता है। लेकिन Manuscript at all. So who is the one that actually went to all of these 6 manuscripts and compiled the Sira, the biography of the prophet that we use today? कहता है कि यार लेकिन इन 6 मैन्यूस्क्रिप्ट को किसने पढ़ा और पढ़ के एक सीरत नबी इब्ने इसहाक लिखी? ये काम किसने किया? देखिए 6 मैन्यूस्क्रिप्ट है, 6 डिफरेंट लोकेशन पे है, 6 लाइब्रेरियों में है। इन 6 लाइब्रेरियों में से इन 6 के 6 मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ के एक सिंगल किताब सीरत नबी इब्ने इसहाक किसने बनाई है? आइए सुनते हैं। Who did that? This guy right here. Heinrich Ferdinand Wustenfeld, a German scholar who between 1858 and 1860, there in Berlin, went to these 6 manuscripts. He went to the Fez one, which is the oldest. He threw out 75% of it because he didn't see it was accurate. He only kept 25% of it. And then he went to the other 5, 3 of them that are in Britain, 1 that is in Ireland, 1 that is in Paris. And he went through those manuscripts and he compiled the story. He then published it in 1860, and that's the story that everybody uses today. Put together. कहता है कि यार एक जर्मन साइंसदान है जो 1858 से 1860 के दरमियान, जर्मन स्कॉलर विस्टनऑफ, वो गया, उसने इन 6 मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ा। उसमें से जो अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि फेज का मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो कि 1063 ईस्वी का है, उसमें से उसने कोई 25% के करीब डाटा लिया, बाकी 75% को उसने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये मोहम्मद के बारे में नहीं हो सकता, ये बहुत बुरा है, उसने कहा। फिर उसने बाकी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है 5, उनमें से थोड़ा थोड़ा डाटा लिया, इन सारे के सारे डाटा को कंपाइल किया, कंपाइल करके उसने एक किताब लिखी सीरत नबी बाई इब्ने इसहाक। 19वीं सदी के अंदर एक जर्मन स्कॉलर वेस्टनऑफ ने सीरत नबी इब्ने इसहाक, जो कि अर्लीस्ट सोर्स है, वो साला 6 मैन्यूस्क्रिप्ट को यूज करते हुए, जिसमें से जो अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें सिर्फ 25% लिया गया है, वो मिस्टर वेस्टर्न ऑफ समथिंग ऑफ जर्मन लिख रहा है। तुम्हारी सीरत नबी 19वीं सदी में क्रिएट हो रही है। मुसलमानों अकल करो, अकल के नाखून लो। By a German scholar in 1860. The Life of Muhammad by Ibn Ishaq is compiled by a German scholar 160 years ago. So everything that 160 साल पहले एक जर्मन स्कॉलर वेस्टर्नऑफ ने मुसलमानों के साथ स्कैम किया और सीरत नबी बाई इब्ने इसहाक लिखी। Muslims now use today to know who their prophet, what their prophet did, comes from a German scholar who he decided what was authoritative and what was not, threw out what he didn't like and kept what he did like. उसने उन चीजों को फेंक दिया जिसको जो चीजें उसे पसंद नहीं आई, उन चीजों को रख लिया जो चीजें उसको पसंद आई, और उसने लाइफ ऑफ प्रॉफिट बाय इब्ने इसहाक 1860 में लिखी। दैट इज द सीरत नबी बाय इब्ने इसहाक जो आप लोग पढ़ते हो। You do realize that is even more devastating, that you don't even have a single manuscript of Ibn Ishaq, and it's in parts in so many locations, and some Western German so-called scholar picked it up and made it into some book. You do know what you're saying, right? Yep. Yes. I introduced this in July 6th. This is all what you're hearing. I did introduce on July 6th, and this went all over the world. मैंने कहा यार देखो यार, और मैं इस वक्त लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात सुन रहा था।
जब इसने मेरे इंग्लिश चैनल पे आके बोला है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये बात सुनी थी, क्वाइट फ्रैंकली। मैं ऐसा कहा यार कितना डेविस्टेटिंग बात है, खतरनाक बात आप मुझे बता रहे हो कि सीरत नबी इब्न इसहाक का एक भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, और एक जर्मन बंदे ने आके 19वीं सदी में 6 मैन्युस्क्रिप्ट में से अपनी मर्जी से कुछ चीजें पकड़ी, कुछ चीजें निकाली और एक बुक बना दी, जिसको आज हम मोहम्मद की सीरत कह के मानते हैं 100%। यार इससे ज्यादा डेविस्टेटिंग चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। ये क्या बता रहे हो मुझे? About 2.5 million people have watched it, and most people, when they talk to me, they always talk about this material. कहते हैं कि यार मैंने जून में ये बात की थी और उसको 2.5 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, और वो हमेशा मुझसे इसी के टॉपिक के ऊपर आके बात करना चाहते हैं, और भाई करेंगे भी। ये बहुत ड्रामेटिक चीज दिखा दी है। और मैंने आपको क्या कहा था कि आज की लाइव स्ट्रीम को डाउनलोड कर लेना जल्द ही, राइट? क्यों डाउनलोड कर लेना? और मैंने कहा था क्या, ये बहुत जल्दी पाकिस्तान में बैन होगी, क्योंकि ऐसी बातें पाकिस्तान में जाने नहीं देते। तो जब ये पाकिस्तान में बैन हो जाएगी, 3 दिन दे दो, 3 से 4 दिन, उसके बाद सारे लोग अपने चैनल पर चलाना, अभी ना चलाना, 3 दिन के बाद, 3 दिन तक बैन होगी, 3 दिन लगेंगे, 3 दिन के बाद सब अपने चैनल पे डालना, ऐसा ही डालना। They said, this is the first time we've ever heard this. I said, of course it's the first time, because no Muslim has done this research yet. Why aren't Muslims doing this research? And why are they letting a German scholar put together the story of their prophet? Why didn't they do this? कहता कि यार ये मुसलमानों ने क्यों नहीं किया, ये जर्मन स्कॉलर को करना पड़ा, और मुसलमानों ने इस चीज के ऊपर स्टडी क्यों नहीं किया, ये चीज निकाल के क्यों नहीं दिखाया कि जर्मन बंदे ने हमारे नबी की सीरत लिखी है, वो भी 160-170 साल पहले। Why haven't they gone to these 6 manuscripts? What's more, Adam, I would like someone now to go to each one of those 6 manuscripts, because you can get every one of them. Because there was another man, this guy here, Sezgin, who just went back to the Fez manuscript as the earliest one and redid a new biography in 1967 that disagrees with the one we have today. तो फेज मैन्युस्क्रिप्ट को एक और जर्मन ने पढ़ा, उसका नाम है सेस्गर। उसने 1967 के अंदर दोबारा फेज मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा, और उसने पढ़ के जो फेज मैन्युस्क्रिप्ट में चीजें निकाल के दी हैं, वो सीरत नबी इब्ने इसहाक से बहुत डिफरेंट है। तभी वेस्टर्न ऑफ ने मेजॉरिटी ऑफ द फेज मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा ही नहीं। 75% ऑफ द डेटा जो कि फेज मैन्युस्क्रिप्ट में मोहम्मद के बारे में है, उसको लिखा ही नहीं उसने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसको मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर ये बंदा जो शिशगर है, उसने 1967 के अंदर जाके पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसने जो किताब लिखी है, वो 90% बताती है कि वो चीजें जो उसने बताई हैं वो गलत हैं। जो फेज मैन्युस्क्रिप्ट है वो मोहम्मद के बारे में कुछ और बता रहा है। Oh, so there is another Sira by this guy who went through these manuscripts, the same manuscript. Just the first one. Just the first one. Okay. सारे के सारे नहीं गया, वो फेज पे गया, अर्लीस्ट। उसने क्या कहा, मैं सिर्फ अर्लीस्ट सोर्स पे जाऊंगा, बाकियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अर्लीस्ट है उसको देखते हैं, राइट? ओके, सो ही वेंट टू द 1063 AD manuscript, and he gave us a whole new different story. Why is it that no one's reading his manuscript? Why aren't they reading his biography? Why is it we have a whole other Muhammad here? कहता है कि यार फिर हम इसको क्यों नहीं पढ़ रहे? जो अर्लीस्ट सोर्स है वो तो फैज है, और अगर फैज के मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो कोई भी बंदा इस वाले सीरत नबी को क्यों नहीं पढ़ रहा? वो सीरत नबी इब्ने इसहाक को क्यों पढ़ रहा? हालांकि वो अर्लीस्ट सोर्स के ऊपर नहीं है, उसको पढ़ रहे हो, लेकिन जो अर्लीस्ट सोर्स के ऊपर है उसको नहीं पढ़ रहे। It won't be whole lot. There are some things that would be similar, because you're talking about 11th century to begin with. That's 400 years after, if Muhammad even existed. कहता है कि यार वो, हालांकि वो बंदा भी 11वीं सेंचुरी के मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ रहा है, और 11वीं सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट मोहम्मद से 600 साल के बाद का है, तो पता नहीं मोहम्मद एग्जिस्ट करता, कथा भी नहीं करता था कि एक कहानी बना दी। लेकिन फिर भी जो अर्लीस्ट सोर्स है उसको पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे? I don't believe he did. You can, that's fine. But I'd like to know how you can believe he did what he said and did. That's all I could. कहता है यार मुझे नहीं परवाह कि वो एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, तुम बिलीव करते हो, ओके तुम करते हो, कर लो,
लेकिन फिर तुम उसको क्यों नहीं रीड कर रहे? जो अर्लियर सोर्स है उसको स्टडी करो ना, उसको रीड करो। concern of today. I want to know what he said and what he did. Can we trust that? If he कहता मुझे तो यही देखना है कि क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ उसको, उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या किया। did exist. Okay? So what should we do with Ibn Hisham and al-Wakili? Bye-bye. There they go. तो Now कहता we है कि have one इब्ने more genre हिशाम और अल-वाकिदी का क्या करें? फेंक दो, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। to go through. Here we go. अब हिस्ट्री ऑफ तिबरी देखनी है, वो रह गई है। Okay, I have a shock here. You do realize I'm in a shock, or if you Okay. don't because you can't see my face, I'm in a shock. All right. I still hold Ibn Ishaq to be very authentic, and I'm in a shock when you gave me this information that there is not even a single manuscript of Ibn Ishaq. Or Ibn And- Hisham or al-Wakili, the three that are given credibility or authority for this. You're right. Not one. मैंने कहा यार मैं तो बहुत शॉक में आ गया हूँ, और वाकई में उस टाइम पे वाकई शॉक में था। मेरे लहजे से आप लोगों को फील हो रहा होगा मैं शॉक में था कि हमारे पास है ही नहीं कुछ अर्ली एक भी नहीं, ना इब्न इसहाक, ना इब्न हिशाम, ना वाकिदी, कुछ भी नहीं। और कहानी पे कहानी बनाई गई है। ये इस मोहम्मद के लिए तुम लोग कत्ल करते हो यार। सालों मर जाओ, जन्नम में मरो, सालों इस धरती का बोझ कम करो, इसके लिए जिसका तुम्हारे पास एक भी सोर्स नहीं है। And you are absolutely sure of that all the research that you have done, you are unable to find one of it. मैंने कहा यार तुम्हें यकीन है कि तुमने जितनी भी रिसर्च की है तुम्हें एक भी नहीं मिला? I don't have to do. I didn't do the research. Fortunately, it's not me. I'm just the communicator that communicates it. And what they're telling me, and this actually we got from the Germans. कहता है ये जर्मन साइंसदानों की रिसर्च है, जर्मन हिस्टोरियंस की रिसर्च है, ये जर्मन्स ने हमें बताया। कहता है मुझे इसके ऊपर मजीद रिसर्च करने की जरूरत थी, जब उन जर्मन हिस्टोरियंस हमें ये बता रहे हैं, ये उनकी स्टडी है, उनके पीएचडीज हैं, उन्होंने हमें बताया। The Germans gave me this material on the Sira. Oh man, that is astonishing, surprising, and shocking, and that's crazy. Okay, now let's finish with this last genre. This is the Tafsir and the Tahqiq of Al-Tabari. Everybody loves Al-Tabari because really he's the one that tells you how to walk, talk, eat, drink, sleep. Everything you need to know. History of Tabari, 49 volumes. The whole life before Muhammad and after Muhammad, the Sahabis and the Tabi'ins in one single book, 49 volumes. और अगर आपको हिस्ट्री चाहिए इस्लाम की तो तिबरी पे जाओगे, मोहम्मद से पहले की 7वें मैं कहता हूं 6ठे वॉल्यूम के अंदर तो मोहम्मद पैदा होता है, तो पहले 5 वॉल्यूम तो प्री मोहम्मद है। उसके बाद मोहम्मद के बाद जो इमाम हसन इमाम हुसैन तक की बातें हैं सारी की सारी, सब कुछ हिस्ट्री ऑफ तिबरी के अंदर कंप्लीट। ये किताब 49 वॉल्यूम्स की कब लिखी गई? That's right. Put together before he died in 923, so 10th century, right? Yes, sir. 10वीं सेंचुरी की होनी चाहिए। अब 10वीं सेंचुरी तक तो पेपर थे ना सालो। Okay. Nope. Nope. Everything we know that Al-Tabari has written does not come from him. It comes from these two documents. You see them putting on the screen right now? So, सब कुछ जो हमें अतिबरी का मिलता है, वो सब कुछ जिसको तिबरी आप लोग कहते हो, वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो के 13वीं सेंचुरी के हैं, 1253 एंड 1244। 1253 and 1244 that are in Istanbul. From Istanbul. Istanbul से लिए हुए। Dated to the 13th century. Those two documents, which are still there today. But who actually wrote down what Al-Tabari wrote? Who actually is the one that is authorized? So that all the volumes that you just mentioned, Al-Tabari, who actually wrote them down? A Muslim? No. You ready? This man here. Michael Jean de Gouge. So, ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं 13th सेंचुरी के जो कि इस्तांबुल में पड़े हुए हैं, इन 2 डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए एक जर्मन बंदे माइकल डी जो ने 20th सेंचुरी के अंदर
हिस्ट्री ऑफ अतिबरी वाली वो किताब जो है उसको आपके लिए शाया किया है इन दो डॉक्यूमेंट्स को यूज करके, इन दो डॉक्यूमेंट्स को जिसको एट्रीब्यूट किया जाता है टुवर्ड्स हिस्ट्री ऑफ अतिबरी। सो हिस्ट्री ऑफ अतिबरी का वजूद नहीं है 13th सेंचुरी से पहले। सो आपको जो अरबी में चीजें नजर आती है हिस्ट्री ऑफ तिब्री की, वो 13वीं सदी की है। लेकिन जो आपको वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं आजकल के हिस्ट्री ऑफ तिब्री के, जो अंग्रेजी में है, जो सारी ट्रांसलेशन वगैरह की हुई है और ये सारा कुछ, ये एक 20वीं सदी के जर्मन हिस्टोरियन ने लिखी है बाय यूजिंग टू मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दो मैन्यूस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो कि 13वीं सदी के। A Dutch scholar in the University of Leiden between 1879 and 1901. So we're talking about 1901. That's in the last century. Compiled everything he could get from these two manuscripts and put it together into what Al-Tabari has given us today, and attributed it back to Al-Tabari in the 10th century, taking it from 13th century manuscripts. So here you go. It's not a Muslim that has done this. It's actually another European scholar, in this case, a Dutch scholar. But we have Tibri in Arabic as well. Absolutely. And what is the dates on those? The same 923 AD. No, not one of them is from 923. मैं ऐसे कहा यार मेरे पास तिबरी की तफसीर है वो 923 लिखा हुआ है, क्या बच्चे वाली बातें कर रहे हो? कहता है उसमें से एक भी नहीं, एक भी मैन्यूस्क्रिप्ट 923 का नहीं है। मैं कहा पर अरबी में है, कहता नहीं है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है ही नहीं, वो 13वीं सेंचुरी का मैन्यूस्क्रिप्ट है। सो हर वो चीज जो तिबरी ने लिखी जो कि सपोजिटली अर्लीस्ट है, वो साला 13वीं सेंचुरी से आ रहा है। Can you so see all that? of them are coming from the 13th century. 13th century, and most of them would be written after the 13th century. That's why. अच्छा, इस जगह पे आके ना मेरा दिमाग माउफ हो चुका हुआ। मैं अंग्रेजी में ये बातें जो सुन रहा हूं, इससे मेरा दिमाग इस वक्त, अब यहां पर आके मेरा दिमाग माउफ हो चुका है। यानी कि पिछले 6 सालों से जो मैं इस्लाम की क्रिटिक इनसाइड द इस्लाम कर रहा हूं, यार कौन सा इस्लाम, ये कब बनाया इस्लाम? ऑटोमन एम्पायर ने कुछ क्रिएट किया? सारा कुछ तो ऑटोमन एम्पायर क्रिएट कर रही है भाई। अब्बासियों ने लिखा, अब्बासियों ने बाबा जी का ठुल्लू लिखा। असल में तो सारा ऑटोमन एम्पायर कर रहा है। अब्बासी कब कर रहे हैं? अब्बासी तो बाबा जी का ठुल्लू कर रहे हैं। Why, when Sheikh Fadi was taking these off his shelf, he said, listen, I would have loved to say, can you show me the original manuscript for everything you're taking off your shelf? He had no idea. There's no way he could have known, because no one's really done this research before. So I'm going to get rid of Al-Tabari. Now here we're going to conclude. All right, let's put it all together. What we're saying is this. कहते हैं आओ अब इसको कंक्लूड करते हैं। ओके, इसको कंक्लूड करते हैं। Everything that Muslims are dependent on comes what I call the Islam of faith. See that I put up there? कहते हैं जो कुछ भी हमें मिलता है वो इस्लाम ऑफ फेथ से मिलता है। क्या मिलता है? We believe that these men knew what they said, what they wrote, they saw, and what they heard correctly, and then passed it on 100% accurately from generation to generation to generation, 5 generations, some say 8 generations, up until when it was finally written down. That's that period left of the red line. What we're now finding out that everything we know about what Muhammad said and did actually comes from right of the red line. So the Islam of history is from the 11th to the 16th century, not from the 7th to the 9th century or 10th century. It's actually from the 11th to the 16th century. So we can put a big red X there of the Islam of faith, because we just don't have anything to support what they say, what he said and did. So basically हर वो चीज जिसको ये हदीसों में चेन ऑफ नरेशन कहते हैं, भाई साहब चेन ऑफ नरेशन तो खत्म हो गई है 9वीं सेंचुरी में। चेन ऑफ नरेशन तो 9वीं सेंचुरी में खत्म हो गई है। उस चेन ऑफ नरेशन को लिखने वाला लिख रहा है 11वीं सेंचुरी में। ये बीच के 100-150 साल का क्या करोगे? 12वीं सेंचुरी में 200 साल का क्या करोगे? 13वीं सेंचुरी में 300 साल का क्या करोगे?
अबे ये जो 300 साल 200 साल 150 साल का गैप है चेन ऑफ नरेशन का, वो कौन पूरा करेगा? क्योंकि तुम लोग तो 9वीं सेंचुरी और 8वीं सेंचुरी बना के बैठे हुए थे हदीसों के ऊपर, तो तुम्हारी हदीसों की चेन ऑफ नरेशन तो 8वीं 9वीं सेंचुरी में खत्म हो जाती है। उसके बाद के 150 से 200 साल तक कौन बनाएगा? वो कौन लेके आएगा? And our conclusion, the Islam of faith came from stories about Muhammad supposedly written by those who saw and heard him, thus by eyewitnesses or by others within a few generations. Yet in reality, the real Islam of history was originally created 400 to 900 years after he presumably lived, but they were not canonized into a final text until 1200 to 1270 years later, suggesting accretions, deletions, and corruptions throughout. इस्लाम ऑफ फेथ को छोड़ के, अकीदे को साइड में रख के, जो टेक्स्ट है इस्लाम का, वो तकरीबन 400 साल के बाद हमें नजर आता है। ओके, लेकिन जो उस टेक्स्ट में डेटा को डालना है, रिमूव करना है, चेंज करना है, उसमें से ये नहीं पकड़ना, ये पकड़ना, ये नहीं पकड़ना, ये नहीं पकड़ना, ये नहीं पकड़ना, ये नहीं पकड़ना, वो इस्लाम के मोहम्मद के मरने के 1200 साल बाद हो रहा है। वो मोहम्मद के 1200 साल बाद हो रहा है। यार कुछ खौफे खुदा करो यार, ऐसे दीन के पीछे मरते हो, ऐसे दीन के पीछे जिहादी बने फिर रहे हो, ऐसे मोहम्मद के लिए तुम लोग जाने ले रहे हो, ऐसे मोहम्मद के लिए जाने दे रहे हो। यार थोड़ा सोचो तो सही। What that means is we have the same problem as Christians. Be careful. As Christians, we also have an awful lot of writings that purport to be eyewitness accounts about what Jesus said and what Jesus did, written by Thomas, like the Gospel of Thomas. Muslims love that one. Or the Gospel of Judas, that were supposedly written by Thomas and by Judas, who were right there. They were the Sahaba, because they were with Jesus. They saw him. They heard him. So that's why we of course we read them. You have to read these gospels when you're in seminary. I had to read them. And the favorite of the Muslims is the Gospel of Barnabas, who corrects everything that the gospel writers today said, because proving that Jesus was a Muslim, that he claimed to be a Muslim, and that he was there to wait and receive and prepare the way for another prophet that was yet to come. But here's the thing is, we read about this Gospel of Barnabas, the Gospel of Thomas, the Gospel of Judas. We have to read them. I have to read them, and I have to engage with them. But we never consider them to be credible. Why do we not consider them to be credible, Adam? They were written too far out. Exactly. The Gospel of Barnabas was written in the 17th century. So basically यहाँ पे वो बता रहा है कि यार मुसलमानों को जब आप ये बात बताते हो तो फौरन आके कहते हैं तुम्हारे पास भी तो है ना, गॉस्पेल ऑफ थॉमस है तुम नहीं लेते, गॉस्पेल ऑफ फलाना है तुम नहीं लेते, गॉस्पेल ऑफ बारनाबास है तुम नहीं लेते। तो कहते हैं यार कि जब ये सेमिनरी में आप स्कूल अटेंड करते हो तो आपको ये सारी गॉस्पेल पढ़नी पड़ती है, क्योंकि चाहे अपॉक्रिफा अकाउंट हो चाहे कुछ भी आप रीड करते हो, क्योंकि अब आप सेमिनरी में हो, आपको ये तमाम चीजें रीड करनी है। तो मुझसे सवाल करता है कि यार फिर क्रिश्चियन जो है इन गॉस्पेल्स को क्यों नहीं लेते? मैंने कहा इस वजह से कि वो बहुत लेट लिखी गई है। बारनाबास 15वीं 16वीं सदी में लिखा जा रहा है, थॉमस जो है वो 2nd 3rd सेंचुरी में लिखा जा रहा है। तो ये स्वाभी है ही हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप नाम जिसका मर्जी बना लो, जब टेक्स्ट आपको इतनी देर से मिल रहा है तो कैसे मान ले? Gospel of Thomas and the Gospel of Judas are written well later into the 2nd century. So they were not early enough to be credible, to say nothing of the fact that they completely contradict everything that is from the 1st century. So you can see why all of this has been thrown out. But we still have to read them, right? But nobody trusts them because they are written too late. तो कह रहे कि यार रीड तो हमें करना पड़ता है जब हम स्कूल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन ट्रस्ट इस पे कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि लेट लिखा गया। बेस पॉइंट क्या बना रहा है इस चीज को? Now, while we throw them out because they're written too late, notice what the Muslim traditions do. The Muslims are all considered authoritative. The Christian traditions are all considered fraudulent because they are too late, and that's why we don't use them in the church. Whereas for the Muslims, they use the latest ones you can find. कहता है ये इस्लाम के जो मुसलमान मानने वो लेट से लेट सोर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं,
अर्ली सोर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो सोर्स नजदीक है उसको कह रहे हैं हमने नहीं पढ़ना। अब फेज की जो सीरा है, जो फेज के अंदर पड़ा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जो बाद में लिखी हुई है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि सब ओटोमन एम्पायर में लिखी गई। यानी कि ये कैसा स्टुपिडिटी है कि जो सोर्स तुम्हारे नबी के नजदीक का है उसको ठुड्डे मार रहे हैं, उसको गार्बेज में डाल रहे हैं, और जो सोर्स दूर का है उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। Their most authoritative material are the latest material, which is the most, for us as Christians, considered to be the ones we would never use. Now, but the problem is they don't have any early. तो मैंने उसने कहा कि यार वो लोग लेटर सोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। मैं कहा प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनके पास अर्ली सोर्स है ही नहीं, स्क्रिप्ट्स। So like if you are saying that they are using a non-credible source to define Muhammad, the problem is they don't have a credible source near the life of Muhammad to define Muhammad. So if they go by the historical critique or historicity accounts of how we figure out a person and throw away the later sources, then by definition they don't have anybody there. So what do you think is going on here? Ready? मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा यार अगर आप उससे कहते हो कि अर्ली सोर्सेस को लो, मोहम्मद के पास के सोर्स को लो, तो भाई उनके पास तो है ही नहीं। पहले 400 साल तक तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे ले लें? लेट अलोन कि वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनमें से भी लेटर सोर्सेस को ले रहे हैं, तो कैसे ले ले बेचारे? One more slide. Okay. Almost everything that Muslims are dependent on for how they live today come from what the Islamic traditions say Muhammad did and what Muhammad said. But are they really trustworthy historically? Muslims say Muhammad, the Quran, Mecca were all in existence in the 7th century, yet none of the traditional writers lived or worked in Mecca or Medina, but lived hundreds and thousands of miles to the north. Sheikh Farid, who I've been having this exchange with, suggests that there were far earlier traditions, including many in the 7th to 8th century. We now have seen from that graph that the Sahaba and the Tabi'un, all of Muhammad's eyewitnesses, lived in the 9th and 13th century, 200 to 600 years later. Sorry, I should say not lived, but wrote in the 9th and 10th, 13th century, 200 to 600 years later. That the Sira was put together by a man named Frederick Wustenfeld, an elderly German linguist in 1860, who wrote Muhammad's biography, taken from 6 manuscripts dating between 1063 and 1589, thus 400 to 900 years too late. And the Hadith of Muhammad saying are all dated between the 11th to the 15th century, so that's between 400 to 800 years too late. The Tafsir of Tahriq were put together by a Dutch man named Michael Jean de Geuge between 1879 to 1901, and compiling from Islam stories from the 19th to the 20th century. So, my conclusion, and we'll end with it. So, conclusion उसने क्या किया अभी जो बातें बताई, उसने कहा जब मैं शेख फरीद से बात करता हूं तो वो मुझे जाके किताबें दिखाता है जो कि 7वीं और 8वीं सेंचुरी की है, लेकिन जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि उनमें से कोई भी किताब 7वीं 8वीं सेंचुरी की नहीं है। उसके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो 9वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी की है। हम जब सीरा के ऊपर स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि वो 1860 में जर्मन बंदा लिख रहा है। हम जब हदीस के ऊपर देखते हैं तो 11 से 15वीं सेंचुरी के दरमियान में है। हम जब तारीख के ऊपर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो 1870 में एक जर्मन साइंसदान लिख रहा है, जबकि वो यूज कर रहा है 11वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक के दरमियान के 6 मैन्युस्क्रिप्ट्स को। तो ओरिजिनल क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। तो कंक्लूजन क्या दे रहा है? वो जरा कंक्लूजन सुन लें। Yes, I want to hear your comeback. I'm not saying that these writers did not exist. Let me repeat that. There could well have been an Ibn Ishaq or an Ibn Hisham or al-Waqidi. I would not suggest anything other, because there has to have been these names there for someone to attribute them fact to, right? So I would suggest that these probably writers did exist. Nor did I say that they didn't write anything. They probably did write what they're attributed to have written. I'm sure they wrote things down about what Muhammad said and did. All I'm suggesting is that what we have today in our hands, the extant manuscripts, were not probably written by them, that their original documents that they wrote on were accreted and deleted and corrupted over the subsequent centuries, adding stories and laws which were needed in those later centuries. You had a caliph here who wanted to play around with little girls, so therefore he created the story of Muhammad and Aisha. And he needed to be able to have Muhammad
play around with little girls so that he could do the same. You have someone here who wanted to bring in all these laws and institution on warfare. So therefore you attribute that back to what Muhammad did, written by Ibn Hisham or Al-Waqidi. You have all kinds of rules and regulations that you want to bring about in your caliphate. And so therefore you attribute these stories back to Ibn al-Bukhari and Sahih Muslim and Ibn Dawud. And therefore you redact them back so that you get credibility, just like the Gospel of Barnabas is redacted back to one of the companions of Paul, to give credibility to Jesus as a Muslim. This has been going on for 2,000 years. This is nothing new. We did it, they're doing it. But we know we did it, and we reject them because those are nothing more than redactions. What the Muslims aren't doing is they're taking the redactions, the latest redactions, and making them authority. These were all then redacted back to the Prophet himself in order to give their new laws and their new institutions credibility. So what we're saying here is the very thing you said about an hour ago. How do we know that between what the Sahaba saw and what the Sahaba heard didn't get accreted and deleted and corrupted within the next 5 generations? I'm saying it's not just in the next 5 or 8 generations. We're talking between 400 to 900 years of accretions and deletions and corruptions. And notice, let's go back to this. Notice where most of these manuscripts were created. Notice what is that era that most of these अच्छा, पहले इससे पहले हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए उसकी कंक्लूजन क्या है? वो कह रहा है कि यार मैं नहीं कहता कि इब्ने इसाक नहीं होगा, होगा। इब्ने हिशाम नहीं होगा, होगा। बुखारी नहीं होगा, होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जब आप इन चीजों को देखते हो, तो हमारे पास उनका कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। सो मोहम्मद के बारे में नई से नई कहानियां घड़ी और उन नई से नई कहानियों घर के आपने नई से नई चीजें बना ली। अब हमें पता है कि क्रिश्चियंस ने भी ऐसा किया। किसी क्रिश्चियन बादशाह ने कोई नई गेम डालने की कोशिश की, उसने एक डाल दी कोई चीज, क्या वो क्रिश्चियन है? फिर इसका मतलब है नहीं है। हम उसको नहीं मानते कि क्रिश्चियन है, वो जलील इंसान था। उसने किया, हमें पता है कि उसने किया, हमने उसको रिजेक्ट किया, हमने उसकी किताब को भी रिजेक्ट किया। जैसे गॉस्पेल ऑफ बारनबास है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं लेकिन जैसे ही आप इस्लाम के ऊपर जाते हैं, वो ओरिजिनल सोर्सेस को डिस्टोर्ट करके अपनी मर्जी से सोर्सेस बनाए। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक मुसलमान बादशाह जो छोटे बच्चियों के साथ मजे लेना चाहता होगा, उसने आयशा की कहानी में मजे डाल दिए, आयशा की कहानी बना दी, छोटी बच्ची की कहानी डाल दी, एक और कहानी डाल दी कि मोहम्मद एक छोटी बच्ची को देख रहा था, उसको कहा कि तुम फातिमा एज की तरह बड़ी होगी तो शादी करूंगा। तो कहते हैं कि यार ये कहानियां पे कहानियां बनाई गई हैं और मुसलमान इस लेटर सोर्सेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं बजाय इसके कि अगली सोर्स पे जाए। तो अर्ली सोर्स पे तो आपको मोहम्मद मिलता ही नहीं। मोहम्मद कहाँ है? मक्का मदीना में तो नहीं है, इस लोकेशन पे तो नहीं है, मिलता तो है ही नहीं। तो द होल आइडिया इज कि जब हम इन सोर्सेस को पढ़ते हैं तो हमें कोई ओरिजिनल चीज मिल ही नहीं रही है, और जो मिल रही है वो इतनी रिड्रैक्टेड है, इतनी चेंज्ड है, करप्टेड है, क्रीडेड है, डिलीटेड है कि हम उसे माने कैसे? कोई मान ही नहीं सकता उसको। तो कहता है कि अगर हम इसके ऊपर अगर सोचे तो फिर हम पीछे चलते हैं और वहां पे जाके वो क्या कह रहे हैं? What Muhammad said and did, what we have in our hands today, what we now use is mostly from the Ottoman period, redacted back to these men during the Abbasid period, because all of these men. कहता है कि जो हमें अभी मिला हुआ है वो ऑटोमन पीरियड का डेटा है, और ऑटोमन पीरियड का जो डेटा है उसको हम सल्तनत उस्मानिया जिसे कहा जाता है, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया का डेटा है सारा, और उसको ये लोग कहते हैं कि ये अब्बासियों का है, अब्बासियों के टाइम से लिखा गया है। तो इस्लाम जो हम आज तक कहते आ रहे थे कि अब्बासियों ने इस्लाम बनाया है, ये स्मिथ साहब कह रहे हैं अब्बासियों ने इस्लाम नहीं बनाया, इस्लाम का मोहम्मद सल्तनत उस्मानिया ने बनाया और उसको बोल दिया कि अब्बासियों ने बनाया। वो ये कह रहा है। You saw for the Sira in the Hadith and the Tafsir and the Tariq are all Abbasid writers who then attribute back to what Muhammad supposedly said and did. Come back to me. So उस्मानियों ने बनाया, कहा कि अब्बासियों ने कहा था, और अब्बासियों ने कहा मोहम्मद ने कहा था। डेटा कहां पे मिल रहा है आपको? उस्मानियों के पास, सल्तनत उस्मानिया पे, ऑटोमन एम्पायर पे। और अब ये मुझे कहता है वहां पे कि मुझे रिजेक्ट करके दिखाओ। On this.
How can I come back to you on this one? Because so you are telling me that all of these writings are of the time when there were some quotes in quotes Muslim kings holding quotes in quotes a lot of land and a lot of power, and they needed material, so they asked their scholars to gather the material, and somehow they gathered some material and wrote it down, and that was transmitted. Because I that's the remember it. only thing I can think of right now. That's well. I mean, this is quite normal. You've heard the story of Al Buhari. Al Buhari, in before 870, 850 to 870, that 20-year period, he was given 600,000 akhbars. Right? These Absolutely. were sayings of Muhammad, and he was told कि बुखारी को 6 लाख हदीसें मिली थी। वो कह रहा है कि अगर आप इस चीज पे जाते हो तो बुखारी को 6 लाख हदीसें मिली थी, और उसने क्या to किया? look at these 600 akhbar and to whittle out everything that was fraudulent and whittle them down to 7,397. तो बुखारी ने 6 लाख में से सिर्फ 6,700 हदीसें पकड़ी। So from 600,000 down to 7,000, basically he threw out 98% and तो उसने 98% तो वैसे ही हदीसें फेंक दी थी बुखारी only ने, retained 2% of और उसने सिर्फ 2% रखी। what he was given. So that's within the traditions itself. तो कहता है ये तो तुम्हारे ट्रेडिशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि चीजों को जो अच्छी ना लगे उसे निकाल दो, जैसे बुखारी ने ट्रेडिशन में लिखा हुआ है, और ये चीज मिलती नहीं है आपको, बुखारी के टाइम में नहीं मिलती, ये आपको लेटर टाइम में लिखी हुई मिलती है। So seems like this is quite normal. This was done all the time. सो वो कहता है कि ये क्वाइट नॉर्मल है, कि ये हमेशा हुआ है। लेकिन मैं बताऊं, मैं उस वक्त नहीं बोल सका, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग माउफ हो चुका था इतनी इंफॉर्मेशन लेके। जब मैंने बाद में इस बात के ऊपर सोचा तो मैंने कहा यार ये पता है क्यों उन्होंने लिखा था? वो इसलिए लिखा था कि बुखारी अगर लिख रहा है ज्यादातर डेटा, वो कौन लिख रहा है? इब्ने हाजर, राइट, 15वीं सेंचुरी में। अब इब्ने हाजर जब बुखारी का डेटा लिख रहा है, तो यार उसको पता है कि यार इस वक्त मेरे पास और मैन्युस्क्रिप्ट है जहां पे और चीजें भी हैं। फेज मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें और ब्लाबला लिखी हुई है, और मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें और ब्लाबला लिखी हुई है। तो वहां पर ये जो इक्तबास है कि बुखारी के पास 6 लाख हदीसें आई तो 7,500 सिर्फ रखी, उसने ये चीज खुद डाली है। क्योंकि जिस वक्त बुखारी 15वीं सेंचुरी में पूरी बुखारी की किताबचा आपके पास आ रहा है, उस टाइम पे आपके पास 11वीं सेंचुरी का डेटा है, 12वीं सेंचुरी का डेटा है, 13वीं सेंचुरी का डेटा है, 14वीं सेंचुरी का डेटा है। तो आपके पास डेटा है। तो असल में इब्ने हजर जो है, मुझे लगता है कि वही बुखारी का मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा था, मुझे लगता है वही लिख रहा था। और उसने जो अखबारों की हमें बात हो रही है कि उसके पास हदीसें आई, उसके बाद बाबा जी का ठुल्लू हदीसें आई, वो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को रीड कर रहा था। फेज का मैन्युस्क्रिप्ट हो गया जिसका 25% सिर्फ लिया गया, बाकी कुछ लिया ही नहीं गया। वो अबू दाऊद का मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहा था, वो तिरमिजी का मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहा था। भाई साहब, इट्स दी अदर वे अराउंड। बुखारी से लोगों ने लिया, बुखारी ने लोगों से लिया इन अदर वर्ड अगर देखा जाए मैन्युस्क्रिप्ट की डेटिंग के हिसाब से। वो जब देख रहा था यार इतनी देर से, यार मैं इसको निकाल दूं, इसको निकाल दूं, इसको निकाल दूं, इसको, उसने कहा कैसे निकाल दूं? उसने एक कहानी डली कि मेरे पास 6 लाख हदीसें आई, उसमें से मैंने बड़ा गौर शोर करके तो ये वाली जो है ना 6,700, इनको मैंने वैलिडेट किया, और है ही कुछ नहीं। देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट, और कोई रीजन नहीं मिलती। But it wasn't just al-Bukhari they did it too. This looks like the Ottomans were doing it, so were the Abbasids doing it. Everybody was doing it. So what we have in our hands today, what Muhammad said and did today, is not from the Abbasid period, it's not from the Umayyad period, and it's not from the rightly guided Caliph period. We're talking about much of it. What we now have in our hand today is from the late Abbasid and from the Ottoman period. तो कहता है कि यार असल में आपको जब इसको पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके पास अब्बासी पीरियड्स में कुछ नहीं है, आपके पास मोहम्मद के पीरियड में कुछ नहीं है, जो खुलफाए राशिदीन है उनके पीरियड में कुछ नहीं है। असल डेटा तो आपको अब्बासियों के अखीरले पीरियड में, और मेजर डेटा आपको उस्मानी पीरियड्स में यानी कि ऑटोमन एम्पायर में मिल रहा है। सारा कुछ तो आपको ऑटोमन एम्पायर में मिल रहा है। और फिर कुछ जर्मनों की अम्मा डैडी को कुछ बहुत बड़ी लानत खाने की जरूरत थी, उन्होंने ये डेटा बना के डाल दिया 18 सेंचुरी के अंदर। दैट्स इट, दैट इज द ट्रू इस्लाम। ट्रू इस्लाम ऑफ हिस्ट्री ये है, ट्रू मोहम्मद ऑफ हिस्ट्री ये है। भाई वाई आर यू स्टिल अ मुस्लिम? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों हो आप अभी तक मुसलमान? वाई आर यू स्टिल अ मुस्लिम? क्यों हो अभी तक मुसलमान?
भाई क्यों नहीं एविडेंस? क्योंकि मोहम्मद के बारे में जो सारी कहानियां हैं, पूरी हदीसें हैं, पूरी तफसीरें हैं, पूरी कुरान है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है जो कि उस्मानियों ने और अब्बासियों ने बनाई। अब्बासियों ने और उस्मानियों ने बनाई। भाई गेट आउट ऑफ दिस कल्ट। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। आप सबसे मिलेंगे वेडनेसडे को एक बार फिर। टेक केयर। अल्लाहु अस्गर व यशुआ अकबरुल अजीम। गॉड ब्लेस यू ऑल।